76 स्टूडेंट So, dear students, my name is Dr. Numan, as you know, and I am going to discuss the topic of gallbladder. Gallbladder, you have completed the liver section, and now I will discuss the important topics of gallbladder. सब मुमकिन नहीं है, लेकिन जो important topics हैं वो हम discuss करेंगे. इसमें दो तीन ही topics सबसे important हैं. एक है stone, आपने सुना होगा, stone in the gallbladder which is known as polylithiasis. Secondly, inflammation of the gallbladder, yani cholecystitis, or thirdly, tumors of the gallbladder. So, first, there is the look at the anatomy just to revise it. आपको पता ही होगा. So this is the gallbladder. So you know its anatomy. I am not going in its detail. This is the gallbladder which has cystic duct and some intrahepatic and extrahepatic ducts in front of you. So ये सारी relation आपके सामने है, आपने ज़हन में रखना है. Liver है, उसके नीचे gallbladder है, इसकी position है, साथ cystic duct है and some intrahepatic, extrahepatic bile ducts, and then there is duodenum, यानी small intestine जिसके अंदर ये सब drain होगा. Anyhow, this is just a short overview of the anatomy. Let's come to the point. The topic is, first topic, which is important, very important topic, is cholelithiasis, that is gallstones. Prevalence wise, this disease is more prevalent in Western world. However, it is 3 to 4% in Asian countries as well. अगर इसकी types देखें, there are two main types of the stones. Either they are cholesterol stones or they are pigment stones. So there are two main types. Ab cholesterol stones, as the name indicates, mainly it comprises of cholesterol monohydrate. Major type यही है, cholesterol stone mainly यही होते हैं. लेकिन इसके अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे इसका नाम बता रहा है, इट इज कोलेस्ट्रोल. मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यही है. तो लेकिन इसके अंदर और चीजें भी होती हैं, और चीजें भी हो सकती हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकते हैं, और साल्ट्स भी हो सकते हैं, बट द मेन इज कोलेस्ट्रोल, जैसे नेम बता रहा है. ठीक है. एंड सेकंड इज पिगमेंट स्टोन, जिसके अंदर मेन है कैल्शियम साल्ट्स, बिलिरुबिन कैल्शियम साल्ट्स. ये दो मेन साल्ट्स हैं. ठीक है, बिलिरुबिन कैल्शियम साल्ट्स. इसके अलावा और साल्ट्स भी हो सकते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ gallstones, cholesterol stones and pigment stones. Cholesterol stone mainly comprises of cholesterol monohydrate, and pigment stone mainly comprises of bilirubin calcium salts. Concerning the risk factors, पहले हम cholesterol stones की बात कर लेते हैं. cholesterol stones के risk factors demography wise देखें अगर हम, तो these cholesterol stones are more prevalent in European and American countries. Pigment stones जो second है, pigment stones वो Asian countries में ज़्यादा होते हैं, लेकिन cholesterol stone mainly European and American में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी हो सकते हैं. ये कोई वो नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं होंगे, but mainly it has more prevalence in European and Americans. or it has association with advancing age. More the age will be, more will be the chances of developing cholesterol stones. जितनी ज़्यादा एज है, उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा कोलेलिथियासिस का, और वो भी कोलेस्ट्रॉल वाला. Thirdly, the female gender is important. क्यों है इसकी correlation? It has more association with female. क्यों है ये? It is because of the female sex hormones. ठीक है. अब उसमें क्या होता है? Because of these female sex hormones, आपको पता ही है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उनकी वजह से होगा क्या? There will be more synthesis of cholesterol. So that's why female are more prone to develop cholesterol stones. ठीक है, उनमें
फीमेल हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। अब फीमेल होगी ज़ाहिर है, तो इफ शी इज यूजिंग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, अगेन ओरल कंट्रासेप्टिव यूज कर रही है, तो अगेन उसमें क्या है, सेक्स हार्मोन्स है। और इफ शी इज प्रेग्नेंट, उसमें क्या होगा, अगेन सेक्स हार्मोन्स इंक्रीज हो जाएंगे। सो दीज आर दी रिस्क फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद फीमेल जेंडर। मेन रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दी। इसी तरह ओबेसिटी, ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर। जितना फैटी कोई होगा, ज़ाहिर है फैट में मेन कोलेस्ट्रॉल है, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल स्टोन फॉर्मेशन बढ़ती चली जाएगी। तो ओबेसिटी इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर। Similarly, there are other risk factors like rapid weight reduction. इसी तरह there is stasis of the gallbladder. अगर gallbladder किसी वजह से उसके अंदर फ्लूइड्स की मूवमेंट नहीं हो रही, बिलीरुबिन इम्पैक्ट हो, बाइल इम्पैक्ट हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रही, तो दिस देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन। इसी तरह कुछ इनहेरिटेड डिजीजेस भी होती हैं जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये कौन सी इनहेरिटेड डिजीजेस, लाइक इनबॉर्न एरर्स ऑफ बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म, लाइक डिसलिपिडीमिया सिंड्रोम्स वगैरह। सो अगर हम if we talk about the risk factors of cholesterol stone, पहले मैंने बताया आपको कि डेमोग्राफी वाइज इट इज मोर प्रेवलेंट इन यूरोपियन एंड अमेरिकन। फिर आपको बताया कि with increasing advancing with increase in age with advancing age there will be more chances of development of cholesterol stone। फिर बताया कि इसकी ज्यादा एसोसिएशन है फीमेल के साथ, की रीजन मैंने आपको बता दी। इसी तरह ओबीज पेशेंट, और फिर आपको इनहेरिटेड डिजीज बताई। सो यू हैव टू कीप इन माइंड फीमेल, ओल्ड एज, यूजिंग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, और प्रेग्नेंट लेडी, ओबीस, ये सारी चीजें आपके माइंड में अगर हैं तो आपने कोलेस्ट्रॉल स्टोन के बारे में सोचना है, एज दे आर रिस्क फैक्टर्स फॉर कोलेस्ट्रॉल स्टोन। कमिंग टू पिगमेंट स्टोन्स, I have already told you the pigment stones are more common in Asian countries। एशियन में ये हमारे यहाँ ये पिगमेंट स्टोन ज्यादा कॉमन होता है, और इसकी एसोसिएशन विद हेमोलिसिस है। हेमोलिटिक डिजीजेस आर एसोसिएटेड विद पिगमेंट स्टोन फॉर्मेशन। एज यू नो, पिगमेंट स्टोन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, बिलीरुबिन कैल्शियम स्टार। सो व्हेन देयर विल बी हेमोलिसिस inside the body, when there will be hemolysis, there will be increase in bilirubin level, which is unconjugated bilirubin. So it will lead to pigment stone formation। जितना बिलिरुबिन ज्यादा होगा उतने ही चांसेस पिगमेंट स्टोन बनने के ज्यादा हैं। तो जितना हेमोलिसिस होगा उतना बिलिरुबिन ज्यादा होता जाएगा और उतने चांसेस बढ़ते जाएंगे पिगमेंट स्टोन फॉर्मेशन के। अब हेमोलिटिक डिजीजेस बहुत सी हैं, आपने पढ़ ली होंगी, सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस और एब्लास्टिनीमिया वगैरह वगैरह, बहुत सी हेमोलिटिक डिजीज हैं। वो आपने वो मेरा टॉपिक नहीं है। सो एनी हाउ, थर्डली, infection of the bile ducts, it is also a risk factor for pigment stone formation। And fourthly, some malabsorption problems, some problem of the GIT, malabsorption issues, like कोई ileum की कोई disease like Crohn disease या ileum की resection और bypass वगैरह। So these are the risk factors of pigment। So I have informed you about the risk factors of cholesterol stones and pigment stones। Coming to the morphology of the morphology of the cholesterol stone first, mainly they are inside the gallbladder। Pigment stone डिसलोकेट होके डक्ट्स में भी जा सकते हैं पिगमेंट स्टोन्स, बट cholesterol स्टोन भी जा सकते हैं, बट मेनली दे आर इनसाइड द gallbladder। तो मेनली इट्स साइट इज gallbladder। कंसिस्टेंसी, एज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यू, कि मेनली जैसे कि नाम बता रहा है, मेनली इट कंप्राइजेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो
either there will be pure cholesterol stones or they will be mixed cholesterol stones. ठीक है, और मिक्स्ड cholesterol stone वो क्या है, उनमें क्या होता है, उनमें कोलेस्ट्रॉल के साथ कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फेट एंड बिलिरुबिन और दूसरे साल्ट्स भी हो सकते हैं, मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट और बिलिरुबिन. कलर ग्रे, वाइट टू ब्लैक. अगर प्योर कोलेस्ट्रॉल होगा तो दैट इज मेनली येलो. प्योर कोलेस्ट्रॉल इज येलो इन कलर, अदरवाइज दे आर gray, white to black. They are ovoid, they are firm, they are multiple, usually they are multiple and they have faceted surfaces. इसका क्या मतलब है कि चूंकि ये मल्टीपल होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं, that's why they have faceted surfaces. ये है. And the important thing is they are radiolucent. You have to remember it. It is important point. They are cholesterol stones are radiolucent. And remember, more the constituent of calcium carbonate in a stone, more it will be radiolucent. ठीक है, जितना ये कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का लेवल ज्यादा होगा उतना ही रेडियोल्यूसेंट वो चीज ज्यादा होगी. So cholesterol stone mainly they are radiolucent. ये याद रखना. Now the pigment stone site, it can be found anywhere in the bile duct, in the biliary system. It can be at any site, but mainly it is again in gallbladder, but it can be dislocated from gallbladder and it can go in any bile duct. Cystic duct में obstruction cause कर सकती है या दूसरी intrahepatic extrahepatic ducts में भी ये displace होके जा सकता है. Pigment stone mainly its consistency, mainly मैंने पहले बताया, mainly it comprises of calcium salts of bilirubin, which is unconjugated bilirubin. So calcium salts of unconjugated bilirubin and other calcium salts भी हो सकते हैं like calcium carbonate, calcium phosphate वगैरह वगैरह. ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकता है इसमें और कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है. They are usually mixed, they are not pure stones. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन प्योर भी हो सकते हैं, लेकिन पिगमेंट स्टोन मेनली ये मिक्स्ड होते हैं. Color wise, there are two main colors, black and brown. Black stones mainly they are found in sterile gallbladder. They are small, fragile to touch, they are multiple and they are radio opaque. ठीक है, ये ब्लैक स्टोन्स हैं, दे आर स्मॉल, इसीलिए ये डिसलोकेट होके कहीं भी जा सकते हैं, ये सिस्टिक डक्ट में जा सकते हैं और डक्ट्स में जा सकते हैं, बिकॉज दे आर स्मॉल, दे आर फ्रेजाइल and they are multiple. And remember again, black stones, they are radio opaque. They are radio opaque. Now the brown stones, more brown stones, they are found in infected ducts. Black stones, they are found in sterile gallbladder, but brown stones are found where there is infection. इनकी infection के साथ ज़्यादा association है. Again, they are soft, not fragile, but they are soft and greasy. Soft and greasy, usually single, and they are radiolucent. ठीक है जी, they are radiolucent. तो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताया, सॉरी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया, कोलेस्ट्रॉल स्टोन की बताया आपको, क्या बताया कि मेनली दे आर इनसाइड द गॉल ब्लैडर, इनका साइज ज्यादा होता है इसलिए ये डिस्प्लेस नहीं होते, मेनली दे आर इनसाइड द गॉल ब्लैडर. कंसिस्टेंसी क्या होती है, मेनली कोलेस्ट्रॉल विद अदर कैल्शियम साल्ट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, दे कैन बी बिलिरुबिन. कलर इनका ग्रे वाइट टू ब्लैक हो सकता है. They are multiple, having faceted surfaces, but the most important thing, they are radiolucent. तो पिगमेंट स्टोन्स बताया कि ये कहीं भी हो सकते हैं क्योंकि they are small in size, easily displace हो जाते हैं.
कंसिस्टेंसी मेनली कैल्शियम साल्ट्स ऑफ बिलिरुबिन। मेन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट ये होता है, दूसरे कैल्शियम साल्ट्स भी हो सकते हैं, दूसरी चीजें भी हो सकती हैं। मेनली दे आर ऑफ टू इन कलर, ब्लैक एंड ब्राउन। Black, they are radio opaque and fragile. Brown, they are greasy and they are radiolucent. Clinical feature, mainly polylithiasis के patients asymptomatic, mainly they are asymptomatic, कोई symptom नहीं होती, ये एक incidental finding होती है. They are mainly asymptomatic, but there can be symptom or main symptom क्या है, that is pain. Pain will be excruciating, constant, और ये होगी किस साइड पे, ये right upper quadrant of the abdomen पे होगी या epigastric region में होगी, और ये deviate हो रही होगी to the shoulder, पीछे जा रही होगी, shoulder पे जा रही होगी, excruciating pain होगी. So if a patient comes to you, she is female, she is obese, she is in her 50, 40, 50 age, obese है, फीमेल है, प्रेग्नेंट है, ओसीपी ले रही है और उसकी पेन हो रही है इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, यानी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में या एपिगैस्ट्रिक रीजन में, तो आपने आपके ज़हन में पोलीलिथियासिस आना चाहिए, आपके ज़हन में गॉलस्टोन आने चाहिए. और इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी? द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज अल्ट्रासाउंड. ठीक है, आपने अल्ट्रासाउंड से इसे कंफर्म करना है. कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? देयर कैन बी इन पस फॉर्मेशन इनसाइड द गॉल ब्लैडर, जिसे हम एम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर बोलते हैं, पस इन द गॉल ब्लैडर. ठीक है, ट्रीट आपने नहीं किया, कोलिलिथियासिस को आपने ट्रीट नहीं किया, तो उससे क्या हो जाएगा, अंदर जहां पे बाइल है वहां पे इंफेक्शन हो जाएगी, पस फॉर्मेशन हो जाएगी, दिस इज नोन एज एम्पाइमा. अगर फिर ट्रीट नहीं किया तो दैट विल परफोरेट, गॉल ब्लैडर डिस्टेंड होते होते फिर वो परफोरेट हो जाएगा. ठीक है, परफोरेशन हो जाएगी, परफोरेशन होगी तो बाइल बाहर आएगी, बाहर आके वो क्या करेगी, फिस्टुला फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देगी, फिस्टुलास बन जाएंगे, एब्नॉर्मल एरियाज के साथ कम्युनिकेशन हो जाएगी गॉल ब्लैडर की. इसके अलावा क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शन एक्सटेंड कर सकती है टू द आउटसाइड ऑफ द गॉल ब्लैडर, यानी कि बाइलरी ट्री में जा सकती है, कोलेंजाइटिस हो सकता है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइल ट्री. इसके साथ साथ पैंक्रेटाइटिस भी हो सकता है. और ये जो गॉल स्टोन्स हैं, ये क्योंकि मैंने पहले आपको बताया एनाटॉमी याद रखें, ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोजली दे आर लोकेटेड, क्लोज होता है गॉल ब्लैडर इंटेस्टाइन के साथ, उसके करीब ही पड़ा होता है, तो ये इंटेस्टाइन के किसी पोर्शन की ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है ये स्टोन. दिस इज नोन एज गॉल स्टोन आइलियस. मोस्ट मेनली ये आइलियन की करता है, लेकिन किसी भी एरिया कर सकता है. सो दिस इज गॉल स्टोन आइलियस. सो मैंने आपको अभी तक कोलिलिथियासिस डिस्कस किया है, और कोलिलिथियासिस में हमने क्या बात की है, ये दिस इज मेन टॉपिक, अगली भी हम देखेंगे, वो उसी से रिलेटेड है. मेन टॉपिक ये है गॉलस्टोन. हमने कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गॉलस्टोन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड पिगमेंट. कोलेस्ट्रॉल का मेन, जैसे नाम जा रहा है, मेन कंटेंट कोलेस्ट्रॉल है कोलेस्ट्रॉल स्टोन का. पिगमेंट का मेन कंटेंट बिलिरुबिन कैल्शियम साल्ट. कोलेस्ट्रॉल के साथ रिस्क फैक्टर्स में आपने याद रखना है, जितनी एज ज्यादा होगी, फीमेल जेंडर होगा, ओबीज होगी, ओसीपी यूज कर रही है, प्रेग्नेंट है, वगैरह वगैरह, तो ये ज्यादा चांसेस हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन के और पिगमेंट स्टोन के चांसेस ज्यादा है इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम हेमोलिटिक डिजीज. कोई हेमोलिटिक डिजीज की हिस्ट्री है तो ज्यादा चांसेस हैं पिगमेंट स्टोन के. इसके अलावा इन्फेक्शन या मेल एब्जॉर्प्शन. मॉर्फोलॉजी हमने देखी, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स क्या होते हैं, हमने मॉर्फोलॉजी देखी कि ये ग्रे वाइट टू ब्लैक इनका कलर होता है, मल्टीपल होते हैं, फेसेटेड होते हैं, और खास बात दे आर रेडियोल्यूसेंट. फिर हमने पिगमेंट स्टोन की हमने मॉर्फोलॉजी देखी. ठीक है, वो क्या होते हैं, मेनली दे आर ब्लैक या ब्राउन होते हैं, दो इनकी मेन कलर हैं. ब्लैक, दे आर फ्रेजाइल, दे आर स्मॉल एंड दे आर रेडियो ओपेक. और ब्राउन जो है वो ग्रीसी है एंड दे आर रेडियोल्यूसेंट. ये आपने याद रखना है. क्लिनिकल फीचर मैंने आपको बताया, मेनली दे आर एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन
जो मेन फीचर है दैट इज पेन कहाँ होगी, इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम या एपिगैस्ट्रिक रीजन में एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है और ये रेडिएट हो सकती है टू द बैक साइड टू द शोल्डर। कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर पस फॉर्मेशन हो जाएगी, ट्रीट नहीं हुआ तो ये अल्टीमेटली परफोरेट कर जाएगा, फिस्टुला फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा यही इन्फ्लेमेशन बाइल ट्रीज को भी बाइल ट्री को भी इन्वॉल्व कर सकती है। Coming to the cholecystitis, which is what? Which is inflammation of the gallbladder, और मैंने आपको बताया कि cholecystitis, which is inflammation of the gallbladder, it is almost always associated with gallstone. यानी जहां कोलीलिथियासिस होगा वहां कोलिसिस्टाइटिस, यानी कोलिसिस्टाइटिस जहां भी होगी बैक साइड पे उसकी मेन रीजन गॉलस्टोन। अगर पेशेंट is suffering from cholecystitis, तो मेन रीजन बिहाइंड इज gallstone। ये ध्यान में रखना है, ऑलमोस्ट ऑलवेज, बहुत कम चांसेस हैं, बड़े 5 to 10 कह लें जिस सिचुएशन में gallstone नहीं होता, अदरवाइज मेन इशू इज gallstone। कोलिसिस्टाइटिस की मेनली तो दो टाइप्स हैं, लेकिन हम 3 कह सकते हैं। मेनली दे कैन बी एक्यूट, दे कैन बी क्रोनिक। लेकिन एक और चीज कि क्रोनिक के ऊपर अगर सुपर इम्पोज्ड एक्यूट कोई एपिसोड हो जाए तो उसे हम एक्यूट सुपर इम्पोज्ड ऑन क्रोनिक बोल देते हैं, एक्यूट ऑन क्रोनिक बोल देते हैं, ठीक है। बट द मेन टाइप्स आर एक्यूट एंड क्रोनिक। अब एक्यूट आगे 2 वजह से हो सकता है। क्रोनिक में मेन इशू जो है वो गॉलस्टोन है, मेन प्रॉब्लम गॉलस्टोन है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया। एक्यूट में भी मेन प्रॉब्लम गॉलस्टोन है, लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें गॉलस्टोन नहीं भी होता, ठीक है। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, कोलिसिस्टाइटिस मेनली इट्स प्रॉब्लम इज गॉलस्टोन। गॉलस्टोन करेगा कोलिसिस्टाइटिस, गॉलस्टोन की वजह से होगा कोलिसिस्टाइटिस ऑलमोस्ट ऑलवेज। सिर्फ चंद केसेस होते हैं जिसमें ये गॉलस्टोन इसकी बैक एंड पे इसकी रीजन नहीं होती, मेनली इट इज ड्यू टू गॉलस्टोन। ध्यान में रखना, ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाकी इसकी 2 टाइप्स हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक, और एक्यूट और क्रोनिक आपको पता ही है, एक्यूट इन नेचर एंड क्रोनिक इन नेचर आपको पता है। एक्यूट फिर आगे मेनली ड्यू टू गॉलस्टोन बट कैन बी बिकॉज ऑफ सम अदर प्रॉब्लम, मेनली इट इज ड्यू टू गॉलस्टोन। तो जिसकी वजह से हमने इसको 2 में डिवाइड कर दिया, एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस एंड एक्यूट ए कैलकुलस जिसमें स्टोन नहीं है, एक्यूट ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। और सेकंड मेन टाइप इज क्रोनिक, अर्ली हम एक्यूट ऑन क्रोनिक भी कह सकते हैं। कमिंग टू द पैथोजेनेसिस ऑफ कोलिसिस्टाइटिस, पहले हम एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस की बात कर लेते हैं। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस ड्यू टू स्टोन, जिसमें स्टोन है इशू, प्रॉब्लम गॉल स्टोन है। तो गॉल स्टोन क्या करेंगे, दे विल ऑब्स्ट्रक्ट द गॉल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन काज करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से गॉल ब्लैडर की डिस्टेंशन शुरू हो जाएगी, बाइल आगे जाएगी नहीं, बाइल ड्रेन होगी नहीं, सो गॉल ब्लैडर क्या होगा, डिस्टेंड होता जाएगा। तो द इशू आपने ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम इज गॉल स्टोन जो ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रहे हैं। अब ये स्टोन क्या करेंगे, स्टोन विल डैमेज द म्यूकोजा, अल्सरेशन कॉज कर देंगे, म्यूकोजा को डैमेज करेंगे, म्यूकोजा की लेयर को एक्सपोज कर देंगे। अब उससे म्यूकोजा से रिलीज होंगे सर्टन फैक्टर्स, एक लाइपेज यानी फास्फोलाइपेज वो रिलीज होगा, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और भी होते हैं लेकिन हमारा मेन जो कंसर्न है वो इनसे है। लाइपेजेस क्या करेंगे, फास्फोलाइपेज क्या करेंगे, दे विल कन्वर्ट लेसिथिन जो कि नॉर्मली बाइल के अंदर होता है, तो लेसिथिन को लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट कर देंगे जो कि टॉक्सिक होता है फॉर द म्यूकोजा। सो म्यूकोजा का डैमेज बढ़ जाएगा। पहले स्टोन ने उसको डैमेज किया, खुद म्यूकोजा को डैमेज किया और उसको उसकी लेयर को एक्सपोज कर दिया, जिसके नीचे से निकला आया एंजाइम्स, फैक्टर्स, जिसके नीचे से फैक्टर्स आए, इनमें एक होता है लाइपेज, वो क्या करेगा, वो बाइल के अंदर मौजूद लेसिथिन को लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट कर देगा, एंड दिस लाइसोलेसिथिन इज टॉक्सिक फॉर द म्यूकोजा, सो म्यूकोजा का डैमेज मजीद बढ़ जाएगा। सेकेंडली प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होंगे एंड दे विल प्रमोट द इन्फ्लेमेशन, म्यूकोजा और मसल लेयर
दोनों के अंदर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट आते जाएंगे, यानी कि क्योंकि ये एक्यूट है तो वहां पे न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे इनकी वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से। अच्छा, अब चूंकि डिस्टेंशन हो रही है, अंदर बाइल एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर डिस्टेंड हो रहा है, उससे क्या होगा, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा। जब इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, म्यूकोजा की ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज कर देगा। अब अगेन इससे क्या हुआ, म्यूकोजा का डैमेज बढ़ जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ा, प्रेशर ने क्या किया, म्यूकोजा की ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज कर दिया, उसको कंप्रेस कर दिया, लिहाजा म्यूकोजा का डैमेज बढ़ गया। सो स्टोन की वजह से पहले हुई ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुई गॉल ब्लैडर की डिस्ट्रक्शन। ये जो स्टोन है ये क्या करेंगे, ये म्यूकोजा को मैकेनिकली ये डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से म्यूकोजा की लेयर उड़ जाएगी नीचे से, जो नीचे वाली लेयर से फास्फोलाइपेजेस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह रिलीज होंगे। ये फास्फोलाइपेज क्या करेगा, ये बाइल के अंदर मौजूद लेसिथिन जो नॉर्मली मौजूद होता है उसको लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि टॉक्सिक है फॉर द म्यूकोजा। सेकेंडली क्या करेगा, दे विल कॉज द इन्फ्लेमेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन विल कॉज द इन्फ्लेमेशन। और फर्दर क्या है कि चूंकि इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ रहा है तो म्यूकोजा का की ब्लड सप्लाई भी कंप्रोमाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से अगेन डैमेज म्यूकोजा का बढ़ता जाएगा। अगर हम ए कैलकुलस, एक्यूट ए कैलकुलस कोलिस्टाइटिस की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि इन 5 to 12% केसेस में गॉल स्टोन रीजन नहीं होती कोलिसिस्टाइटिस की, तो उनमें क्या इश्यूज होते हैं, उनमें देयर आर सर्टेन अदर इश्यूज, लाइक देयर विल बी नॉन बाइलरी सर्जरी, कोई और सर्जरी हो रही है जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर के ऊपर प्रेशर है। सेकेंडली ट्रामा हो गया गॉल ब्लैडर का, बर्न, सेप्सिस, डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर की स्टेसिस हो जाएगी, या वेस्कुलर कंप्रोमाइज, यानी कि उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाए गॉल ब्लैडर की, एंड सम इन्फेक्शन। सो दे आर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। इसमें एक्यूट ए कैलकुलस में स्टोन नहीं है तो अदर फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो कोई सर्जरी हो रही है जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर, उसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है गॉल ब्लैडर के ऊपर। सेकेंडली उसके ऊपर और स्ट्रेस क्या हुआ, कोई ट्रामा हो गया, या कोई बर्न हो गया, या उसकी इन्फेक्शन होगी, सेप्सिस होगी, या डिहाइड्रेशन होगी। ये सारे मेनली ये दे आर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर एक्यूट ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। अगर हम क्रोनिक की बात करें, अगेन जैसे एक्यूट कैलकुलस के साथ मेन प्रॉब्लम गॉलस्टोन है, उसी तरह क्रोनिक का मेन इशू भी गॉलस्टोन है। मैं पहले बता चुका हूं कि क्रोनिक कोलिस्टाइटिस अगेन इट विल बी ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद गॉलस्टोन। इसमें क्या होगा, देयर विल बी सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल that will predispose the patient to chronic inflammation। जितनी बाइल ज्यादा होगी उतने चांसेस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसके अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है, इकोलाई, एंटेरोकोकाई वगैरह वगैरह ये भी हो सकते हैं, बट द मेन इशू इज गॉलस्टोन। गॉलस्टोन ही मेन प्रॉब्लम है। जैसे एक्यूट कैलकुलस कोलिस्टाइटिस में था, वैसे ही क्रोनिक कोलिस्टाइटिस में गॉलस्टोन दे आर द मेन प्रॉब्लम। कमिंग टू द मॉर्फोलॉजी, एक्यूट कोलिस्टाइटिस में अगर हम देखें, coming to the morphology of the gallbladder, ग्रॉसली अगर हम एक्यूट में देखें, मेनली हमें क्या मिलेगा, ग्रॉसली अगर हम देखें हमें उनमें स्टोन मिलेंगे। इन 90% केसेस देयर विल बी स्टोन्स जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं। 90% केसेस में हमें स्टोन्स मिलेंगे। गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड होगा, एनलार्ज्ड होगा, रेडिश होगा, उसकी जो आउटर लेयर है वो उसके ऊपर एक्सुडेट होगा, फिब्रिनो पुरुलेंट एक्सुडेट होगा। इनसाइड मैंने पहले बता दिया कि ल्यूमन फिल होगा विद द बाइल, और चीज भी हो सकती है जैसे फिब्रिन हो सकता है, ब्लड हो सकता है, पस हो सकती है। इनसाइड वाल उसकी थिक होगी और एडिमेटस होगी। ठीक है, मैंने क्या बताया कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन में ग्रॉसली हमें गॉल ब्लैडर में क्या मिलेगा, गॉल ब्लैडर के अंदर हमें मेनली स्टोन्स मिलेंगे 90% केसेस में। और क्या होगा, गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड, एनलार्ज्ड, रेडिश, आउटर सरफेस उसकी, उसके ऊपर एक्सुडेट, फिब्रिनोपुरुलेंट, इनसाइड फिल्ड विद बाइल, विद ब्लड, विद फिब्रिन, विद पस, और इसकी जो वॉल है दैट विल बी थिक, एडिमेटस, हाइपरेमेट। अगर there are two terms which is associated with acute cholecystitis, two terms
अगर उसके अंदर पस है विद इन द गॉल ब्लैडर, आपको पस मिली है तो हम इसे कहेंगे एम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है, पस इन द ल्यूमन, एम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर। और अगर ये नेक्रोटिक हो गया है गॉल ब्लैडर तो दिस इज गैंग्रीनस कोलिसिस्टाइटिस, अगर वो नेक्रोटिक हो गया, ठीक है, गैंग्रीनस कोलिसिस्टाइटिस। माइक्रोस्कोपिकली हम देखें तो माइक्रोस्कोपी वैसे ही होगी जैसे एक्यूट सिचुएशन में सबकी होती है, यानी उसमें क्या होगा, एक न्यूट्रोफिल्स होंगे, सेकेंडली उसके अंदर वेसल कंजेशन होगी, थर्डली अडीमा होगा, और साथ में पस भी हो सकती है यानी एब्सेस फॉर्मेशन, और नेक्रोसिस भी हो सकती है। क्रोनिक की बात करें, क्रोनिक की जो मॉर्फोलॉजी है दैट इज वेरिएबल, वेरिएबल है, कोई पेट मॉर्फोलॉजी नहीं है, इट इज वेरिएबल। अगर हम सिंपली इसके साइज की बात करें तो साइज भी वेरिएबल है, इट कैन बी स्मॉल इन साइज, इट कैन बी नॉर्मल इन साइज, एंड इट कैन बी एनलार्ज्ड इन साइज, बट माइक्रोस्कोपिकली द मेन पॉइंट इज लिम्फोसाइट्स, उसके अंदर लिम्फोसाइट्स होंगे, ये मेन चीज ये है, दैट इज क्रोनिक कोलिसाइटिस। और भी हो सकता है जैसे अल्सरेशन है, फाइब्रोसिस वगैरह वगैरह, बट मेन इज लिम्फोसाइट्स। एक्यूट में न्यूट्रोफिल है, इधर लिम्फोसाइट्स। क्लिनिकल फीचर्स, एक्यूट की बात करें, आपने ज़हन में रखना है गाल स्टोन। तो गाल स्टोन में क्या होता है, पेन इन अपर एब्डोमेन, वही इसमें होगा, पेन होगी अपर एब्डोमेन में जो कि ज्यादा देर रहेगी, सवियर होगी। उसके साथ साथ और चीजें क्या हो सकती हैं, पेशेंट को, चूंकि एक्यूट कंडीशन है, पेशेंट को फीवर हो सकता है, नाजिया, वोमिटिंग, और उसे बहुत ज्यादा पेन की वजह से उसे प्रोस्ट्रेशन होगी। पेन मेनली मैंने आपको बता दिया किस रीजन में होगी, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में या एपिगैस्ट्रिक रीजन में, और ये एरिया टेंडर होगा। अगर हम इन्वेस्टिगेशन करवाएं तो सीबीसी में क्या होगा, न्यूट्रोफिल ज्यादा आ रहे होंगे, ल्यूकोसाइटोसिस होगी यानी न्यूट्रोफिल ज्यादा आ रहे होंगे। और एलएफटी करवाएं तो क्या होगा, हाइपर बिलिरुबिनेमिया होगा, बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा होगा। क्रोनिक की बात करें, मैंने आपको पहले बता दिया, क्रोनिक में अगेन क्लिनिकल फीचर वही है, वही कि पेन होगी, और इतनी सीवियर नहीं होगी इतनी एक्यूट में होती है, लेकिन पेन होगी, उसके रिकरेंट अटैक्स होंगे, साथ में नाजिया, वोमिटिंग होगी, और इंटॉलरेंस फॉर फैटी एसिड। जो सिम्टम्स वही होंगे जो एक्यूट में होते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी। इन्वेस्टिगेशन पहले बता दिया गया, दैट इज अल्ट्रासाउंड इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, सुपर इन्फेक्शन यानी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसकी वजह से कोलेंजाइटिस यानी गॉल ब्लैडर की डक्ट्स की इन्फेक्शन हो जाएगी, या सेप्सिस हो जाएगी ओवरऑल, या फिर वहां से परफोरेशन, गॉलस्टोन आपने ध्यान में रखना, या वहां से परफोरेशन होगी, बाहर आएगा, पस बाहर आएगी, और एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगी, फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा जैसे हमने पहले गॉलस्टोन को आपने ध्यान में रखना है, इसके अलावा क्या हो सकता है, गाल स्टोन आइलियस हो सकता है, मैंने पहले बता दिया। और सेकेंडली और आखिर में जो उसके और इश्यूज चल रहे हैं, कोई और इशू चल रहे हैं, मेडिकल इलनेस चल रही है उस पेशेंट की, वो एग्रेवेट हो जाएगी। तो मेन इशू, मेन कंडीशन वही है जो गाल स्टोन में हमने देखी थी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मॉर्फोलॉजी सॉरी कोलिसिस्टाइटिस में मैंने बताया कि इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, दो तरह की होती है, एक्यूट एंड क्रोनिक। मेनली यही होता है, तीसरी टाइप होती है एक्यूट और क्रोनिक। मेन दो टाइप्स होती हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट को हमने फिर फर्दर डिवाइड किया हुआ कैलकुलस और ए कैलकुलस। याद रखना है, कोलिसिस्टाइटिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद गॉलस्टोन, ये आपने ध्यान में रखना है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर या पैथोजेनेसिस मैंने आपको समझा दी, मॉर्फोलॉजी ज़हन में रखनी है। एक्यूट की कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, क्रॉसली हमें स्टोन मिलेंगे, उसके अंदर स्टोन मिल सकते हैं, 90% केसेस में स्टोन मिलेंगे, गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड होगा, बाहर उसकी वॉल जो है, सिरोजा जो है वो उसके ऊपर एक्सुडेट होगा, ल्यूमन के अंदर, ल्यूमन विल बी फिल्ड, इट विल बी फिल्ड विद बाइल, ब्लड, पस वगैरह, ये चीजें हो सकती हैं। अब दो इसमें टर्म बताई थी आपको, एम्पाइमा यानी पस इन द गॉल ब्लैडर, एंड सेकंडली गैंग्रीनस कोलिसिस्टाइटिस। माइक्रोस्कोपिकली वही कुछ क्या है, मेन चीज क्या है, न्यूट्रोफिल्स होंगे, साथ में अडीमा होगा, वेसल कंजेशन होगी। क्रोनिक के अंदर मैंने बताया कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी है
वो वेरिएबल है। और माइक्रोस्कोपी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लिम्फोसाइट्स। एक्यूट में न्यूट्रोफिल्स, क्रोनिक में लिम्फोसाइट। क्लिनिकल फीचर वही है जो गॉलस्टोन वाले, वही फीचर है, बस ये है कि इसमें जरा पेन लंबे अरसे तक रहेगी, फीवर होगा, नाजिया, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन वही सेम इन्वेस्टिगेशन है और कॉम्प्लिकेशन भी वही है जो गॉलस्टोन में हमने देखी। नाउ कमिंग टू द कार्सिनोमा ऑफ द गॉलब्लैडर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बाइल डक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे मोस्ट कॉमनली मैलिग्नेंट ट्यूमर बाइल डक्ट का वो यही है। मेनली वुमन में होता है। तो आपने वो सारी चीजें याद रखनी है, गॉलस्टोन वाली जेन में रखनी है। इसमें भी फीमेल थी, इसमें भी फीमेल है, उसमें भी ओल्ड एज था, इसमें भी ओल्ड एज। ये आपने जेन में रखना है। इसकी एसोसिएशन भी मेनली उसी के साथ है, गॉलस्टोन के साथ। जो भी गॉलब्लैडर की डिजीज हम कर रहे हैं उनकी मेनली एसोसिएशन गॉलस्टोन के साथ। So again female in old ages and association जैसे पहले बताया mainly with the gallstone 90% केसेस में, and in other cases there can be some infection जो कि बैक्टीरियल या पैरासिटिक हो सकती है और प्रोग्नोसिस की पोर होती है। अगर हम इसकी बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी की, तो जैसे सब ट्यूमर के अंदर ग्रोथ पैटर्न दो ही होता है, या वो बाहर को निकलेगा या वो वॉल के अंदर जाएगा। ठीक है, वॉल के अंदर जाएगा, अपने ही वॉल के अंदर जाएगा, इन्फिल्ट्रेटिंग है, बाहर आएगा एक्सोफिटिक है। जो बाहर को आएगा वो कॉलीफ्लावर लाइक होगा मोस्टली। जो अंदर जाएगा वो अंदर डिफ्यूज पोरली लोकलाइज्ड होगा, डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट होगी, थिकनिंग कर देगा वॉल की, और वो बहुत ज्यादा फर्म होगा। ये फाइब्रोसिस ज्यादा हो रही है, लिहाजा वो ट्यूमर भी फर्म होगा, वॉल्स उसकी थिक होगी और सख्त होगी। सो गॉलब्लैडर की ग्रॉसली दो ग्रोथ पैटर्न है इसके, या एक्सोफिटिक यानी कॉलीफ्लावर लाइक बाहर को आएगा, या इनफिल्ट्रेटिंग। माइक्रोस्कोपिकली इट इज मेनली अडीनोकार्सिनोमा, मेनली इट इज अडीनोकार्सिनोमा। क्या वो आपको पता है? अडीनोकार्सिनोमा मेनली यही है। और इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे स्क्वेमस हो सकता है, अडीनोस्क्वेमस या न्यूरोएंडोक्राइन, बट मेनली इट इज अडीनोकार्सिनोमा। और इट कैन बी well to poor differentiation। डिफरेंशिएशन इसकी poorly differentiated भी हो सकता है, well differentiated भी हो सकता है, moderate भी हो सकता है, but mainly it is adenocarcinoma। स्प्रेड, अब गॉल ब्लैडर आपके जहन में है, उसकी लोकेशन आपके जहन में है, उसके ऊपर लिवर पड़ा है, तो मेनली इट स्प्रेड इज टू द लिवर, बट इट कैन आल्सो टू द बाइल डक्ट्स, टू lymphatic, to lymph nodes, hepatic lymph nodes and to other sites as well। जो नजदीक एरियाज हैं उन सबसे पहले उनको स्प्रेड करेगा। क्लिनिकल फीचर अगेन आपने गॉलस्टोन जेन में रखना है। गॉलस्टोन में भी पेन थी, इसमें भी पेन है, मोस्टली इन द राइट हाइपोटोन्ट्रियम और एपिगैस्ट्रिक रीजन, वहीं पे पेन होगी। क्योंकि ये ट्यूमर है तो ट्यूमर के अपने फीचर भी होंगे। ट्यूमर विल कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, इट विल कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द गॉलब्लैडर या बाइल डक्ट्स या एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट्स, उनकी ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, लिहाजा क्या होगा? जॉन्डिस विल डेवलप, यानी बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। So jaundice, patient will present with jaundice, patient will present with pain, with jaundice। फिर आपको बताएगा वही जो ट्यूमर वाले फीचर्स होते हैं, यानी उसे भूख नहीं लगेगी, उसे नाउजिया वॉमिटिंग होगी, जो जर्नलाइज फीचर होते हैं। बट द इशू इज पेन एंड जॉन्डिस। फीमेल है, हिस्ट्री दे रही है आपको, स्टोन की हिस्ट्री दे रही है, फीमेल है, ओल्ड एज है, पेन के साथ आई है, जॉन्डिस है, एनोरेक्सिया, वो नाजिया वोमिटिंग वगैरह, आप नहीं ये सोचना है। So this is the important tumor, that is carcinoma of the gallbladder। This is very important tumor। मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया? मैंने बताया इट इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द बाइल डक्ट। फिर आपको बताया कि आपने जेन में गाल स्टोन रखने, ठीक है, लिहाजा आपके जेन में होगा इट विल बी इन द फीमेल मोस्टली, इट विल बी इन द ओल्ड एजेस एंड इट विल बी एसोसिएटेड विद गॉलस्टोन। प्रीवियसली हिस्ट्री होगी गॉलस्टोन की, या फिर इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो सकती है। मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बता दी, मॉर्फोलॉजी एक्सोफिटिक या इनफिल्ट्रेटिंग हो सकती है, मेनली इट इज अडीनोकार्सिनोमा, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा स्क्वेमस भी हो सकता है, एडिनोस्क्वेमस भी हो सकता है, और इसकी स्प्रेड टू इट्स
क्लोज ऑर्गन्स यानी लिवर, बाइल डक्ट वगैरह हो सकती है। और क्लिनिकल फीचर वही होंगे जो बाकी के होते हैं, यानी पेन होगी, जॉन्डिस होगा, ये मेन फीचर है, बाकी वो सबके फीचर होते हैं। Cholangiocarcinoma, few points about cholangiocarcinoma. It is the tumor of the bile duct. जो बाइल डक्ट्स हैं उनसे अराइज करता है, उनके सेल से अराइज करता है। इंट्राहेपेटिक, एक्स्ट्राहेपेटिक हो सकता है, पुअर एजेस, पुअर प्रोग्नोसिस होगी और ओल्ड एज में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इट इज द ट्यूमर ऑफ द बाइल डक्ट्स, उनके सेल से अराइज होता है। मेनली इट इज एडिनोकार्सिनोमा, जैसे गाल ब्लैडर का कार्सिनोमा है, वैसे ये बाइलरी डक्ट का जो कार्सिनोमा है वो भी मेनली एडिनोकार्सिनोमा है। ओल्ड एजेस में होगा, पुअर प्रोग्नोसिस है इसकी। रिस्क फैक्टर इन्फ्लेमेशन, मेन रिस्क फैक्टर वही है, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इसके अलावा पॉलीसिस्टिक डिजीज भी हो सकती है बाइल डक्ट की। अब इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन आपने ज़हन में रखना है। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोलोनोर्किस साइनेंसिस एंड ओपिस्थोर्किस वाइवेरिनी। ठीक है, ये दो मेन पैरासिटिक ऑर्गेन्स होते हैं। ग्रॉसली इट इज फर्म, ग्रिटी, क्योंकि ये बड़ा थिक होता है, सीरस होता है, थिक होता है, फाइब्रोसिस इसमें मल्टीपल, बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस होती है, बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस होती है, ये आपने याद रखना है। इसलिए ये थिक होगा, ग्रिटी होगा, जो ये इसकी कंसिस्टेंसी है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइक्रोस्कोपिकली मैंने आपको पहले बता दिया, इट इज एडिनोकार्सिनोमा है और इसमें बहुत ज्यादा डेस्मोप्लेजिया है, यानी कि फाइब्रोसिस है, पहले ही आपको बता दिया। बाकी इन्वेजन, पेरिन्यूरल इन्वेजन वगैरह हो सकती है, ये आपके सामने है। It is adenocarcinoma and there is fibrosis. So there are clinical features. Please, I don't have the time anymore. आप इसे देख सकते हैं clinical features. Investigation mainly LFTs आपने करवाने हैं जो कि रेज होंगे। और पुअर प्रोग्नोसिस है, मैंने आपको बताया कि पुअर प्रोग्नोसिस है, सो कितना टाइम होगा पेशेंट के पास, 6 to 18 months, यही टाइम है। सो दिस इज द लास्ट मिनट। मैं फिर आपको रिवाइज कर दूं कोलेंजियोकार्सिनोमा के बारे में। दिस इज मेनली एडिनोकार्सिनोमा। अगेन ये ओल्ड एजेस में होगा, इसकी पुअर प्रोग्नोसिस है, बाइलरी ट्री का ट्यूमर है, एडिनोकार्सिनोमा है, मेनली इन्फेक्शन इसकी रीजन है। और उसमें दो पैरासाइट्स हैं जो मैंने आपको नाम बताया। ग्रॉसली ये सीरस है, यानी कि बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस करेगा। माइक्रोस्कोपिकली बताया कि ये एडिनोकार्सिनोमा है और इसमें ग्लैंड फॉर्मेशन होगी जिसके साथ साथ फाइब्रोसिस होगी, बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस है एंड ग्लैंड फॉर्मेशन है, एज इट इज एडिनोकार्सिनोमा। ये क्लिनिकल फीचर्स हैं एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ गॉलब्लैडर। थैंक यू।